नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। मुख्य सचिव ने एपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को पानी की मांग प्रबंधन पर कार्य करने का दिया निर्देश। वंडूर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम हुआ शुरू। और द्वीप समूह में कल भारी वर्षा होने की संभावना। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा अंडमान लोक निर्माण विभाग के सहयोग से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का संचालन और प्रबंधन विषय पर आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अंडमान लोक निर्माण विभाग के फील्ड इंजीनियर्स के लिए 28 फरवरी तक चलने वाले इस प्रशिक्षण का आज उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर उपायुक्त एवं ग्रामीण विकास सचिव अर्जुन शर्मा, अंडमान लोक निर्माण विभाग के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन के अधिकारी और प्रतिभागी अभियंता उपस्थित रहे। सबसे पहले एपीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर टी.के. प्रजीत रेक ने मुख्य सचिव, अन्य गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागी इंजीनियर्स का स्वागत किया। Affecting water distribution, operational cost and overall water loss. In response, this comprehensive training program, developed in consultation with field experts, covers a broad spectrum of topics. Participants will learn about routine and preventive maintenance, water audits to reduce non-revenue water, energy optimization measures, and advanced systems. The curriculum is designed to enhance technical expertise, strengthen managerial capacities, promote community engagement, provide practical experience. Using a practical approach that emphasizes self-direct learning and experience sharing. समारोह में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी मोहम्मद इशफाक ने प्रशासनिक कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। Mission Director, National Jal Jeevan Mission. So I happened to seek your guidance, and you have visited SPM Niwas also. So sir, I will not take much time. I will just say whatever guidance you have given us as a MD, JGM, and now you are giving us as a Chief Secretary. So we will follow that, and we are also extend the support of the SPM Niwas for your future training initiatives also, sir. Thank you, sir. अपने सारगर्भित संबोधन में मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने कहा कि विभाग हमेशा भारत सरकार के नियमों के तहत पेयजल की आपूर्ति प्रबंधन का प्रयास कर रहा है। Andaman Nicobar Islands are unique locations. We have close to 200 rainy days actually, and rainfall last year was more than 3,400 millimeter. Still we face the issues of water, particularly during our summer season, and it has been a lot of problem times earlier also. Jal Jeevan Mission, 5-year plus old scheme, and it came with a very new design in terms of how to reach out to every household with a tap connection. In Andaman Nicobar Island, we don't have that kind of issues which we generally face in the villages in so-called mainland, in other states, where access to water has been a concern since centuries. Jal Jeevan Mission has broken that particular barrier, social barrier in the villages. Every house is supposed to have a tap connection with 55 liter per capita daily availability of this particular quality water. This is the design of Jal Jeevan Mission. Some of the states have done exceedingly well. 11 states and UTs have achieved 100% target.
Andaman Nicobar claim to be one of those locations where we have achieved 100%. दक्षिण अंडमान के राजकीय माध्यमिक विद्यालय वंडूर का वार्षिक दिवस समारोह और पहली से 6वीं कक्षा में अंग्रेजी माध्यम को शुरू करने का कार्यक्रम बीते शनिवार को आयोजित हुआ। स्थानीय लोगों की लंबी समय से यह मांग रही कि उनके स्कूल में बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाई जाए। इस अवसर पर राज्य शिक्षा संस्थान की प्रधानाचार्य संगीता चंद, वंडूर ग्राम पंचायत की प्रधान, PRI सदस्य और स्थानीय लोग उपस्थित थे। अपने संबोधन में स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि स्कूल में ICT लैब, स्मार्ट क्लास, विद्यार्थियों के बेहतर सीखने के लिए इंटरएक्टिव पैनल, बाल सामग्रियों के साथ प्री प्राइमरी और शिक्षण के जुड़ी सभी सामग्रियां बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल में मौजूद हैं। राज्य शिक्षा संस्थान की प्रधानाचार्य ने फाउंडेशन लर्निंग न्यूमरेसी और विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए शिक्षा विभाग के प्रयासों की जानकारी दी। बहुत ही खुशी की बात है। इसका पूरा का पूरा श्रेय जो बच्चों ने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया, ये पूरा श्रेय हमारे HM मैडम को जाता है। मैडम बहुत एक्टिव है, स्कूल के लिए बहुत सोचती है। ये प्रोग्राम करवाना था, उसके लिए हमसे कई बार मिलने आई और आज ये संभव हो पाया। ये जो पूरे स्टाफ है हमारे GMS वंडूर के, ये बहुत मेहनती है। इसका नमूना आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पर आज ये कार्यक्रम करने का 2 मकसद है। एक तो खुशी मनाना कि इंग्लिश मीडियम खुल गया, दूसरा हमारे सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में क्या क्या सुविधाएं सरकार देती है, ये ज्यादातर आम जनता को पता नहीं। इसको जब तक आम जनता को सुविधाओं के बारे में मालूम नहीं होगा, स्कूल में बच्चों का एनरोलमेंट कम रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न स्कूलों में निपुण चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्कूलों के छोटे बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षण देने के मकसद से शिक्षा विभाग की ओर से यह पहल शुरू की गई है। प्रस्तुत है इसकी एक खास झलक। समग्र शिक्षा के प्रमुख कार्यक्रम के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जंगलीघाट में निपुण चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाल वाटिका के विद्यार्थी और उनके अभिभावक तथा शिक्षक शामिल हुए। निपुण चौपाल कार्यक्रम में उप शिक्षा निदेशक और समग्र शिक्षा के SPO S सुरेश कुमार मुख्य अतिथि थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर निपुण चौपाल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में स्कूल की उप प्रधानाचार्य अजीज फातिमा ने मुख्य अतिथि, अभिभावकों और विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए निपुण चौपाल के महत्व पर प्रकाश डाला। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का हमारे विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं आज हमारे बीच उपस्थित हमारे प्यारे बच्चे और उनके अभिभावक, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला और आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। और इन सभी पेरेंट्स ने हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने में बहुत योगदान दिया है।
छोटे बच्चों द्वारा स्वागत नृत्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। स्कूल की शिक्षिका ने निपुण चौपाल के बारे में जानकारी दी। निपुण चौपाल ये कार्यक्रम निपुण भारत के अंतर्गत ही शुरू किया गया है। जुलाई 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत की शुरुआत की गई। शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आप निपुण, आप जो शब्द सुनते हैं, हमारे प्रिय अभिभावक जो यहाँ मौजूद है, तो आप ये जरूर जानिए निपुण क्या है। निपुण दक्षता, किसी भी कार्य को करने की आपकी क्षमता व्यक्त करती है। निपुण संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन कार्य में बच्चों की निपुणता, जो निपुणता आपको यहाँ दर्शाई गई है, जो आप हमारे चौपाल में यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद मुख्य अतिथि एस सुरेश कुमार ने बच्चों द्वारा तैयार किए गए शिक्षण सामग्रियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ठीक है, तो फिर ये भी तो वैसे है। मम्मी के साथ अभी पेरेंट्स और बच्चे का एक्टिविटी कंपटीशन कराएंगे सर, दो ग्रुप करके। मम्मी पहले करती है, पापा पहले करते हैं। प्रदर्शनी का मुआयना करने के बाद मुख्य अतिथि ने छोटे बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में अभिभावक बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य बनाने में अधिक रुचि रख रहे हैं। मदर्स यहाँ आए हुए हैं, उससे ये पता चलता है कि वे आजकल कितना इंटरेस्टेड है अपने बच्चों के पढ़ाई में और उनके भविष्य बनाने में। कुछ साल पहले पेरेंट्स बहुत ज्यादा विद्यालय नहीं आते थे, लेकिन ये एक अच्छा साइन है कि आप लोग विद्यालय आने लगे। ये तो एक विशेष मौका है जिसके कारण से आप आ गए, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब कभी भी जरूरत पड़े अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के बारे में और उसके हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करना है, अब जरूर स्कूल आइए और आपके वाइस प्रिंसिपल मैडम, हेडमिस्ट्रेस मैडम, टीचर से बात करिए, क्योंकि स्कूल और परिवार दोनों जब मिल के काम करेगा तभी बच्चों को अच्छा शिक्षा और उसके अच्छा भविष्य बनेगा। बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस। हमारे साथ इस मेला को सफल बनाने के लिए बहुत नहीं बन पाता। इन पेरेंट्स को हम जब भी स्कूल की प्राथमिक प्रधानाध्यापिका बलबीर कौर ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। धन्यवाद, आप लोगों ने इतना कीमती समय में हमारे विद्यालय में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और थैंक यू सो मच वे सभी अभिभावक जिन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर ये सारे कार्यक्रम में शामिल हुए। और नन्हे नन्हे बच्चे, आप लोगों ने में अपने जितने भी जो योग्यताएं थी वो सारी चीजें जो है हमारे विद्यालय में दिखाए। अब लेते हैं एक ब्रेक। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल
আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও শুরু। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सप्ताह के उपलक्ष्य में श्री विजयपुरम स्थित विज्ञान केंद्र ने 22 और 23 फरवरी को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। विद्यार्थियों के लिए प्रकृति की गंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र के परिसर के चारों ओर एक इंटरैक्टिव टूर पर ले जाया गया, जहां उन्होंने विभिन्न पौधों की प्रजातियों की विभिन्न विशेषताओं, सुगंधों और औषधीय गुणों के बारे में जाना और सीखा। इसके बाद एक पौधा पहचान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों को गंध और उपस्थिति के आधार पर पौधों के नमूनों को पहचानने की चुनौती दी गई। इसके अलावा माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। पेंटिंग का विषय विज्ञान और भविष्य था। प्रतियोगिता में श्री विजयपुरम और उसके आसपास के विभिन्न स्कूलों के 200 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिताओं के पुरस्कार 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर वितरित किए जाएंगे। सुर सप्तक ए संगीत अकादमी की ओर से 22 फरवरी को महान पार्श्व गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। टैगोर कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में RCMR की निदेशक डॉक्टर अपरूपा दास अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं। उन्होंने और अन्य कलाकारों ने महान गायिका लता मंगेशकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अकादमी की संयुक्त सचिव सुमिता सान्याल ने स्वागत संबोधन प्रस्तुत किया। To the legendary Lata Mangeshkar ji, whose voice has been the soul of Indian music for generations. It is an honor for our Sangeet Academy, Sur Saptak, to celebrate her timeless melodies, her unparalleled contribution to the world of music, and the emotions that she evoked through her songs. इसके बाद कलाकारों ने महान गायिका लता मंगेशकर के गीतों के अलावा अन्य कलाकारों के गीतों को गाकर उपस्थित लोगों का मनोरंजन किया। मोरे
अब लेते हैं एक ब्रेक। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। टोटल स्टेशन सर्वे के महत्व को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के भूगोल स्नातकोत्तर विभाग की ओर से कॉलेज परिसर में टोटल स्टेशन पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। कॉलेज की प्राचार्य पर्ल देवदास ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए भौगोलिक विश्लेषण और सर्वेक्षण में टोटल स्टेशन सर्वे की अहम भूमिका एवं महत्व पर जानकारी दी। ITI के संकाय इंजीनियर जी दुर्गा प्रसाद और इंजीनियर CR सिजीता ने टोटल स्टेशन द्वारा सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण विधियों और प्रकारों के बारे में विस्तार से बताया। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में आज शाम से हल्की से मध्यम वर्षा हुई। द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर कल 7 से 11 सेंटीमीटर तक गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 26 फरवरी को द्वीप समूह में एकाध स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की गई है। आज से 27 फरवरी तक अंडमान सागर पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवा चलने और उसके बढ़कर 50 किलोमीटर तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। इस दौरान समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को 27 फरवरी तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अस्तिनाबाद के मुथु मरियमन मंदिर में आज आग में उतरने का वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रद्धालु भक्ति भाव का प्रदर्शन करते हुए आग में चले। इस दिन के लिए श्रद्धालु कई दिनों से व्रत एवं उपवास धारण किए हुए थे। इस पूजा कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் ஆலயம் அஸ்தினாபாத் இன்று இங்கே சீரும் சிறப்புமாக பூக்குழி திருவிழா மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இன்று ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் காப்பு கட்டி கங்கையிலிருந்து இங்கு காப்பு கட்டி ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கங்கையிலிருந்து வந்து பூக்குழி இறங்குகிறார்கள். இப்போது அதிக மழை பெய்து கொண்டு அம்பாள் மிகவும் சந்தோஷத்துடன் இங்கு இன்று அதிசயமான மழை பெய்து மக்கள் எல்லோரையும் மனசு சாந்தி பெற்றிருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த திருவிழா வருஷம் மீண்டும் சிறப்பாக நடக்கும். அதே போன்று இந்த வருஷமும் மிகவும் சிறப்பாக நடந்து அதிலும் பெரிய சிறப்பு என்னவென்றால் இங்கு நல்ல மழை பெய்து எல்லா மக்கள் மனதையும் மலர வைத்திருக்கு என்பதை
अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडवे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। मुख्य सचिव ने APWD के इंजीनियर्स को पानी की मांग प्रबंधन पर कार्य करने का दिया निर्देश। वंडूर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम हुआ शुरू। और द्वीप समूह में कल भारी वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।